Good morning, sir. Hello, class. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. So in this session, we will discuss the other protocols that then we have discussed till now. We have discussed the unit 5, that is the application layer. Basically, we have discussed file transfer protocol. Basically, then DNS, that is domain name system or server. We have discussed. Then we have discussed about HTTP protocols in the briefed, clear, and some some discussion regarding email, that is electronic mail. Then we have discussed about some portion of the how the message is communicated between client and servers. Clear. So how the processing may done. So now we will start with the next topic, that is post office protocol, that is POP. Clear. Okay, can anyone explain where SMTP is used? Clear. SMTP प्रोटोकॉल हमको जनरली कहाँ हम यूज करते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? क्लास, and any one of you can explain the SMTP protocol, where it is used exactly? Is it a type of two-way communication or a one-way communication? Can anyone explain? Hello, all of you are getting my point? What I want to ask? Yes, sir. So simple mail मेरा transfer. क्वेश्चन ये है कि SMTP प्रोटोकॉल हम लोग जनरली किस तरह यूटिलाइज करते हैं? कहाँ यूज होता है हमारा? कैसे यूज होता है? Can anyone answer to me? Okay. Now my next question is how we can utilize the if we talk about the HTTP protocol. HTTP हमने आपको पढ़ाया भी है, नहीं पता? HTTP प्रोटोकॉल को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? Can anyone explain? Okay, nobody is there. Okay, so ठीक है, मैं अभी आपको समझा दूंगा. So देखिए, सबसे पहले if we talk about the SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है? SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? इसमें क्या होता है? बेसिकली जो भी यूजर है या क्लाइंट है, जो मेल को कंपोज करता है, ठीक है? कंपोज करने के बाद क्या करता है वो? उसको ट्रांसफर कर देता है मेल को, ठीक है? तो जो क्लाइंट एंड से या यूजर एंड से मेल हमारा कम्युनिकेट होता है, ठीक है, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, दैट इज बाय द एसएमटीपी प्रोटोकॉल. ये ध्यान रखिएगा. इट इज ए वन वे कम्युनिकेशन. बेसिकली जस्ट फॉलो द वन वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन where the data is getting transferred from the, you can say, from one end only. Clear. So the client exactly composes the mail and it is just communicated to the another side, or we can say server end. So we can say it is a what, it is a one way type communication. So SMTP will follow. Clear.
while if you talk about HTTP, clear, HTTP में क्या होता है? It is a very basic difference between SMTP and HTTP. HTTP is a type of two-way communication where the client can access to the server and server also can access to the client simultaneously. Clear? So this is a type of two-way communication. But SMTP is a one-way communication. Clear? ये आपको ध्यान रखना है. Now हमने कुछ चीजें आपको और बताई थी कि जैसे कोई भी मेल हमारी जो कंपोज होती है, मैसेज कंपोज होता है, ठीक है, तो उसके कंपोज होने से पहले एक हमको कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है. ठीक है भाई, आप मेल जो कंपोज कर रहे हैं या मेल ट्रांसफर करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है. इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन देन हाउ वी कैन ट्रांसफर दैट मैसेज. दिस इज द बिग चैलेंज. क्लियर? सो हमें पहले तो एक रास्ता चाहिए जहां से हमारा वो डेटा ट्रांसमिट होगा. तो वी नीड टाइप ऑफ या तो टीसीपी कनेक्शन चाहिए या फिर हमें यूडीपी कनेक्शन चाहिए. ठीक है, तो यूडीपी आपको हमने बताया था, जैसे टीएफटीपी प्रोटोकॉल पढ़ाया था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द यूडीपी कनेक्शन. क्लियर? और एफटीपी प्रोटोकॉल जब पढ़ाया था हमने आपको टीसीपी कनेक्शन के बारे में बताया था. ठीक है, नाउ एफटीपी एग्जैक्टली फॉलो व्हाट? SMTP protocol. Are you clear my point? Are you getting my point? FTP प्रोटोकॉल है वो TCP को यूज करता है. क्लियर? और SMTP को भी यूज करता है. क्लियर? तो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली, और इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आपका SMTP प्रोटोकॉल को यूज करता है. ठीक है, forget about FTP. Electronic mail also uses the SMTP protocol for sending the mail from the one end, that is client end. Clear? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि HTTP और SMTP के बारे में, तो both are exactly uses TCP connection. दोनों TCP कनेक्शन को यूज करते हैं for the establishment purpose. Clear? So जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है then you can access the file or mail or anything, text, image, videos, whatever is that. Clear? Or simply the text message or email you can transfer from one end to another end. Clear? Am I clear to all of you? Yes. Am I clear to all of you? So this is exactly a type of secure communication. You can say it is a secure type communication. Clear? Security may be provided through the encryption also at the user end. Suppose you are transferring any mail and you just want to encrypt that mail. So अगर आप encrypt करते हैं then you will use some SSL technique. Clear? तो SSL के through आप उसको secure कर सकते हैं and you can encrypt that particular message before transmission. Clear? On the server end or client end, both end. Clear? So so now we are discussing about the post office protocol. This is the next version of the protocol. So email we have already discussed. Clear? So now we can to the post office protocol. Can anyone explain about this? What is this post office protocol? Can any one of you? सर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक एक करके. Have you heard about this? Eh? सर Yes. जब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक एक करके, मतलब जैसे हम लोग की पोस्टल सर्विसेज होती हैं कि लाइक एक पोस्ट आया हुआ है वो किस पर्टिकुलर एड्रेस का होगा, वो पहले ब्लॉक चेक करेगा फिर एक एक घर पे जाके चेक करता है. आपने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया था इसको. ओके, देखिए जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द पोस्ट ऑफिस सर्विसेज एज वी हैव डिस्कस्ड. क्लियर? तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूजर है इन जनरल, क्लियर, जैसे हम हैं, आप हैं, तो हमें कोई अपना पोस्ट चाहिए, मतलब हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जो हमारा या हमारा कोई पोस्टल कोई डिलीवरी है जो पोस्टल एक डेटा कैरी कर रही है. क्लियर?
सो इट इज जस्ट पोस्ट हमारी अगर कोई भी आती है तो पहले पोस्ट ऑफिस में जाती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, वहां पे वो स्टोर्ड रहती है, देन इट विल बी डिलीवर्ड टू द यूजर एंड और क्लाइंट एंड, या the person who is authenticated for that particular postal, clear। so उसको वो डिलीवर हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या है, उसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। तो यू आर, इसका कहने का मतलब क्या है कि द पर्सन हु इज ऑथेंटिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्टल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, इट कैन नॉट गेट द डेटा इंस्टेंटेनियसली, क्लियर। उसको तुरंत वो डेटा नहीं एक्सेस कर सकता है। इट कैन एक्सेस दैट डेटा फॉर ए टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद उसको वो एक्सेस कर सकता है, क्लियर। मतलब जैसे कोई भी डेटा आया तो पहले पोस्ट ऑफिस में स्टोर्ड हुआ, देन वहां से फिर वो पोस्टमैन के थ्रू डिलीवर्ड हुआ। So it just takes some time. Also, the data is available to the post office, clear, and the person can access any time that particular data, क्योंकि उसका डेटा वहां पे अवेलेबल है, तो पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, clear। Now, according to that concept, the POP in the electronic media, how it can be generated. So POP, that is version 3 protocol, basically deals with the client, clear। We have a client server model in which the server having the server mailbox, clear, server is having the server mailbox where the data is stored or the mail is stored when it comes, clear। जैसे जैसे मेल आती रहेंगी वहां पे एक तरह से स्टोर्ड होती रहेंगी, एंड सपोज द मेल इज ऑथेंटिकेटेड टू सम यूजर ऑन द क्लाइंट साइड, एंड सपोज द क्लाइंट इज एट दैट टाइम इज नॉट अवेलेबल। सपोज वो क्लाइंट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, मींस सपोज द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट देयर और द फोन इज स्विच्ड ऑफ or any other problem related to that internet is there, clear, means it is not exactly in the communication with the server end, clear। so whenever it is exactly available with the internet availability or some other things are there which may make them connect with the server, clear। so उस कंडीशन में क्या होगा कि it can access whenever it is available, it can access the particular mail from the mailbox, clear। so first of all, before going to access that particular mail from the mailbox that is stored on the server end, it need to get download from that end, clear। उसको पहले वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने से पहले वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो before going to access that data properly, it will just try to download, and until unless it will not download all the files, yeah, the files related that particular memory, clear। so उस पूरी मेमोरी को, उसको पूरे फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। if you partially download the file, you can't access the complete data, clear। आप डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, so you need to download completely before going to access the data, clear। so इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो कोई भी मेल है तो आपका मेल बॉक्स में स्टोर्ड है, and anytime client end or user end can access the mail whenever he or she is available to access the data। so this is a major advantage of post office protocol। basically ये हमारा पहले यूज होता था। nowadays IMAP4 have just come to this type of protocol that is very fast and efficient also as compared to POP now, but in the past POP was preferred here when IMAP was not in the picture, or we can say it was just implemented at that time, clear। so दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में कोई भी डेटा जब आप सर्वर एंड से एक्सेस कर लेते हैं तो इट इज डिलीटेड नाउ, उसको वहां से या तो डिलीट कर दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स। जैसे डेटा को आपने एक्सेस कर लिया, जैसे ही आपने यूजर ने डेटा को वहां से डाउनलोड कर लिया, देन इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट प्लेस, बॉक्स विल बी जस्ट ओपन नाउ। तो वो जहां से डिलीट हो गया तो वो आपका पोर्शन ओपन हो गया। नाउ यू any kind of server can now access for another data now because that particular data has been already accessed, clear।
सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एक बार डेटा एक्सेस हो गया, देन it will be deleted from the mailbox at the server end. इसके बाद जो इसमें एक और मेन पॉइंट है कि ये मैसेज को डिलीट भी कर सकता है और कीप भी कर सकता है. क्लियर? मींस द मैसेज में बी डिलीटेड और कीप बाय द सर्वर एंड, सर्वर मेल बॉक्स. तो जो सर्वर का आपका स्टोरेज मेल बॉक्स है, वहां से डेटा कीप भी कर सकता है, वहां पे रख भी सकता है और वहां पे डेटा डिलीट भी कर सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिलीटेड द डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड. इससे क्या होता है, स्टोरेज में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है. क्लियर? सो if you see the content is written over here, so the client POP3 सॉफ्टवेयर is installed. एक सॉफ्टवेयर होता है POP3 का क्लाइंट के रेस्पेक्ट में, एक सर्वर के रेस्पेक्ट में. क्लियर? सो दोनों सॉफ्टवेयर वहां इंस्टॉल्ड होते हैं अपने अपने एंड पे. तो क्लाइंट POP3 होता है सॉफ्टवेयर, वो रिसीविंग कंप्यूटर एंड पे होता है. क्लियर? वेयर एज द सर्वर POP3 सॉफ्टवेयर आपका मेल सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है. क्लियर? व्हेन द यूजर वांट टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स ऑन द ईमेल सर्वर, द इवेंट्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. ये सीक्वेंसेस है कैसे वो डाउनलोड कर सकता है मेल्स को. क्लियर? पहला पॉइंट है, द क्लाइंट ओपन्स a connection with the server on the TCP port 110. clear? That is 110. ठीक है? जो सेकेंड पॉइंट है, all of you are getting my point? Yes, sir. Okay. जो सेकेंड पॉइंट है, it sends its username and password to the server so as to access the mailbox. तो सबसे पहले तो ये क्या करता है कि क्लाइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को ओपन करता है. ओपन ए कनेक्शन विद द सर्वर ऑन द टीसीपी. तो सर्वर से जो इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन, वो पोर्ट 110 पे होता है, दैट इज बाय द टीसीपी कनेक्शन. क्लियर? इसके बाद वो क्या करेगा, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करेगा सर्वर को, सो एज टू एक्सेस द मेल बॉक्स. जैसे आप लोग हैं, कोई भी मेल एक्सेस करते हैं तो पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर मेल. देन यू विल बी गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द मेल्स. क्लियर? सो उस प्लेटफॉर्म पे आप तभी जा सकते हैं जब आप उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे ऑन द एक्सेस पेज. क्लियर? सो तो उसके बाद वो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजेगा सर्वर को टू एक्सेस द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए. नाउ द यूजर इज देन अलाउड टू लिस्ट एंड गेट द मेल मैसेजेस वन बाय वन. ठीक है? तब उसको यूजर अलाउ करेगा टू लिस्ट एंड गेट द मेल मैसेजेस वन बाय वन. तब आप देख सकते हैं जो भी आपके मेल्स आपको फॉरवर्ड हुए हैं, तब आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं. गेट द मेल मैसेजेस वन बाय वन आप उसको मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. So you can see we have a mail server and then user computer is there. The mail server is having POP3 server and the user computer is also POP3 client. Here, so you can see how the messages are exchanged. So POP3 client basically sends the username and password to POP3 server. So you can see post office protocol version 3, basically client end sends the username and password to the server end. Clear? And then the server end respond with the OK message. Now I am okay. Whatever data you have provided regarding authentication, that is enough. Now जब ये communication हो गया कि now the login and password is successfully done, then it will send the list. It will just demand for the list. Clear? जो भी mails की list है वो इसके सामने display होंगी. Then the mail server will respond with the email numbers. Clear? And when it access the emails, ठीक है, when the POP3 accessing the email numbers, then it will retrieve the first message. Now इसके पास emails आ गए कि इतने हमारे पास emails हैं. Then it will retrieve the first message. जैसे मान लिया 10 emails थे जो वहाँ मेल बॉक्स में stored थे, तो it will start with the first retrieving of the first message. Clear? Then the first email will be, जैसे इसने एक्सेस किया रिट्रीव करने के लिए, इसको फर्स्ट ईमेल आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं सर्वर एंड पे.
it will be downloaded to the client end. जब retrieve करेंगे, इसका मतलब you are going to download the email, clear, the content related to that, ठीक है। और जब सेकेंड वाली की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मान लीजिए आपके पास चूंकि 10 मेल हैं, तो 10 आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे 1 by 1 10 मैसेजेस को रिट्रीव करना पड़ेगा और उसका रिस्पॉन्ड आपको डाउनलोड करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द डाउनलोडिंग इन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज डन, क्लियर, whenever the client or user is available to access, clear। So now we are having two modes of the POP3। दो मोड्स कौन से हैं, डिलीट मोड एंड कीप मोड। सो डिलीट मोड में क्या होता है, जो मेल होते हैं वो डिलीट हो सकते हैं फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर ईच रिट्रीवल। जैसे आपने रिट्रीव कर लिया तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, मतलब मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर ईच रिट्रीवल। बट ये क्लाइंट नहीं करता है, ठीक है ना, क्लाइंट नहीं करेगा, इस सर्वर एंड पे ही डिलीट हो जाएगा। दिस मोड इज यूज्ड व्हेन द यूजर इज वर्किंग एट दिस परमानेंट कंप्यूटर। ये आप तब कर सकते हैं जब यूजर जो भी यूजर है वो उसी परमानेंट कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, परमानेंट पीसी पे वर्क कर रहा है। इन दिस कीप मोड में क्या होता है, जो मेल्स होती हैं रिमेन्स इन द मेल्स बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। दिस मोड इज यूज्ड व्हेन द यूजर एक्सेसेस मेल अवे फ्रॉम द प्राइमरी कंप्यूटर, ठीक है। जब आप प्राइमरी कंप्यूटर से दूर कहीं एक्सेस करते हैं, देन this mode is used, that is the keep mode। Now the disadvantage of the POP3 is what? Disadvantage क्या है POP3 का, कि POP3 does not allow organization of email on the server, clear। So it does not allow organization of email on the server। The second point is the user cannot have different folders on the server। जो भी यूजर है वो डिफरेंट फोल्डर्स को नहीं रख सकता सर्वर एंड पे, क्लियर, नहीं हो सकता उसके पास कि वो कई सारे फोल्डर बना ले सर्वर एंड पे। थर्ड पॉइंट क्या है, द यूजर कैन नॉट पार्शियली चेक द कंटेंट ऑफ ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोड करने से पहले वो पूरा जब तक डाउनलोड नहीं होगा वो कंटेंट को चेक नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो पूरा कंटेंट डाउनलोड होगा तभी वो उसको चेक कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ POP3। जैसे IMAP4 की मैं बात कर रहा था, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, IMPA लिखा हुआ है, नाउ इट इज IMAP4, क्लियर, दैट इज इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द you can say this is the advanced feature of the POP version, clear। so इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो भी मैसेज है ये एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए हम पॉप की बात करें तो पॉप में क्या होता था कि हम पहले पूरा मैसेज डाउनलोड करते थे, देन वी आर ऑथेंटिकेटेड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर मैसेज। इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई ऑफिस वगैरह है, ऑफिस में आप लोगों ने वो देखा होगा, आउटलुक वगैरह होता है, उसमें क्या है कि आपका कई सारा, जैसे किसी ऑफिस का जो है पर्टिकुलर मेल एड्रेस है या किसी ऑफिस की पर्टिकुलर मेल है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे, क्लियर, द मेल्स विल बी कमिंग and you can check it instantaneously, clear। So the internet mail access protocol basically is another mail access protocol which is very similar to POP3 but it has more features than POP3, ठीक है, जिसकी वजह से ये it will be more powerful and efficient, clear। but ये थोड़ा complex होता है as compared to POP3। so if we talk about the features of IMAP4, so it is possible for the user to check the header before downloading। header means डाउनलोड करने से पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं पार्शियली, क्लियर। सो हेडर बेसिकली क्या करता है, हेडर एग्जैक्टली कंटेन्स द सब्जेक्ट का कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डेट्स टाइम जो भी कुछ है ये सारी चीजें हेडर में होती हैं, एड्रेस एज वेल एज योर सब्जेक्ट, योर टाइम, क्लियर। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर होती है, तो हेडर यू कैन चेक बिफोर डाउनलोडिंग, क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज पॉसिबल फॉर द यूजर टू सर्च द कंटेंट्स ऑफ ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग, ठीक है। हर एक यूजर के पास एक पॉसिबिलिटी होती है, इट इज पॉसिबल फॉर द यूजर टू सर्च द कंटेंट्स ऑफ ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोड करने से पहले इट कैन चेक द ईमेल, बिफोर डाउनलोडिंग इट कैन check the
email. So this is the possibility to the user end. Clear? चेक करने से मतलब डाउनलोड करने से पहले ही कंटेंट को देख सकता है. थर्ड इज व्हाट, इट इज पॉसिबल टू पार्शियली डाउनलोड ईमेल्स. पूरा आप नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, पार्शियली डाउनलोड करके भी आप मेल्स को चेक कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू पार्शियली डाउनलोड ईमेल्स. एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, it is possible for the users to create, rename or delete mailboxes on the mail server. Clear? So जैसा कि पॉप 3 में एक ये भी एक डिसएडवांटेज है, या जो भी कह लीजिए, पॉप 3 में कोई भी यूजर मेल बॉक्स में जो भी मेल्स आ रही हैं उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता है, या रीनेम नहीं कर सकता है, या डिलीट नहीं कर सकता है अपने एंड से. क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, IMAP4 में जो भी यूजर है उसके पास ये पॉसिबिलिटी है, वो रीनेम भी कर सकता है या डिलीट मेल भी कर सकता है ऑन द मेल बॉक्सेस टू द मेल सर्वर. This is the major advantage of IMAP4 also. Clear? I think this is clear to all of you. Post office protocol is clear to all of you, and also IMAP protocol. Yes, sir. Sir, Okay. Some more differences are also there, so I will discuss you at the end of map में clear. जो फोर है Some more differences are all there. So these are some few points which is covered. Yeah. सर आई मैप में जो फोर तो यहाँ फोर Anything someone? क्या हुआ? सर आई मैप में आवाज जो आई जी मैप बताइए. वर्जन 4 होगा ना? हाँ जी, वर्जन 4 है. That is version 4. Anything else? सर उसके बाद कोई वर्जन नहीं है? फिलहाल अभी जो है वो IMAP4 ही है. ठीक है. दिस इज द इसके बाद अभी कोई वर्जन आया है तो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस. क्लियर? यस सर. हेलो. लेटेस्ट कोई वर्जन है तो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस. क्लियर? बट इज द लेटेस्ट वन. आई व्हाट आई फील. क्लियर? द करंट वर्जन ऑफ IMAP, दैट इज IMAP4, एंड वाइडली. ठीक है ना? Okay, so now if we discuss some point regarding URL, that is Uniform Resource Locator. Clear? So you all know about the URL. Basically, whatever we are just typing before going to access from the World Wide Web page. Clear? So URL exactly contains जो भी URL होता है, आप जैसे कोई भी yes, so you need to just type a URL. Yeah. So the user is accessed through a browser program that displays the document and allows the user to access documents by checking by one of these links. Clear? So each link provided the browser with the uniform resource locator. So it specifies the name of the file that contains the requested document. Clear? So now URL के 3 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं. जो भी हम कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो इट हैज एग्जैक्टली द 3 पार्ट्स. एंड ओके, नाउ again sharing that file. Just wait. So it has exactly 3 parts. जो भी हम URL टाइप करते हैं, it is having the 3 parts. The first one is the name of the protocol, that is HTTP. Exactly, you all know HTTP protocol is the name of that part.
clear. Then the second one is the name of the machine where the page is located, clear. The second one is what? The name of the machine where the page is located. The third one is the name of the file containing the page, clear. So we have exactly three parts regarding any kind of URL. So first one is you can see HTTP. जब भी हम कोई वेब एड्रेस टाइप करते हैं तो पहले हम लोग क्या टाइप करते हैं? HTTP लिख, HTTP आपका मेंशन होता है, दैट इज द प्रोटोकॉल वर्जन या प्रोटोकॉल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, क्लियर. उसके बाद हम लोग करते, उसमें देखिएगा आप कोई, जैसे आपको मशीन नेम जो भी मान लीजिए मशीन नेम जैसे www.hindu.com है, दिस इज द मशीन नेम. देन ऑब्लिक आपका opportunity.html, दिस इज द फाइल नेम कंटेनिंग द पेज. तो बेसिकली ये सब हम लोग जब एक्सेस करते हैं तो ये हमारा एक पेज होता है जो हम लोग टाइप करते हैं. इस तरह से कोई भी कंटेंट हम एक्सेस करते हैं यूआरएल को, ठीक है ना. तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं. पहला आपका होता है नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, सेकंड होता है नेम ऑफ द मशीन वेयर द पेज इज लोकेटेड, थर्ड वन इज द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग द पेज, ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट आर फॉलोड बाय द यूजर्स टू एक्सेस ए फाइल, तो पहला है कि ब्राउजर डिटरमाइंस द यूआरएल. सबसे पहले क्या करता है ब्राउजर? यूआरएल को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द यूआरएल. सेकेंड पॉइंट है ब्राउजर आस्क डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ द स्पेसिफाइड मशीन, जैसे कि www.hindu.com. इसका जो है आईपी एड्रेस, जैसे मान लीजिए किसी भी सिस्टम से हम कोई चीज एक्सेस करते हैं, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जो भी है, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है दैट इज स्पेसिफाइड बाय द सर्वर एंड आल्सो, क्लियर, बिफोर एनी कम्युनिकेशन इज डन फॉर द गिवन यूआरएल एड्रेस, ठीक है. तो जो भी एड्रेस है उस पे एक्सेसिंग के लिए आपका आईपी एड्रेस विल बी लोकेटेड एंड ट्रेस्ड, क्लियर, कि किस एंड से हमारा ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना. दैट इज बाय द आईपी एड्रेस. सो डीएनएस सेंड्स द आईपी एड्रेस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 19.24.0.93, तो ये सेंड करेगा ये आईपी एड्रेस. देन ब्राउजर एस्टैब्लिशेस ए टीसीपी कनेक्शन टू पोर्ट 80, दैट इज द एचटीटीपी पोर्ट बेसिकली. So browser establishes a TCP connection to port 80 on the machine having IP address 19.24.0.93. Then the fifth point is browser then sends a command for a new file. Then the sixth point is the specified machine sends the file. जो भी specified machine उसको file send की जाएगी. Then the TCP connection is released. Means जैसे ही आपने communication किया file के लिए, वेब सर्वर से आपको रिस्पॉन्ड मिला उस पेज के लिए, जो भी पेज आपने एक्सेस किया था, ठीक है. जब वो कम्युनिकेशन हो गया देन द कनेक्शन विल बी रिलीज्ड और टर्मिनेटेड. नाउ द ब्राउजर डिस्प्लेज ऑल द डॉक्यूमेंट इन द अपॉर्चुनिटी दैट इज रिलेटेड टू दैट फाइल, क्लियर, HTML फाइल. द ब्राउजर fetches the and displays all the images in the opportunity HTML file, clear. So this is all about URL basically. HTTP we have already discussed that in case of HTTP basically request and response messages are sent before the communication is done. Yeah, this protocol आपको बताया था मैंने कि ये basically transfers data in the form of plain text, hypertext, audio, video and whatever is that clear. So the data transfer in HTTP by the MIME like headers, clear. सो HTTP ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं वी हैव ए क्लाइंट सर्वर मॉडल. दिस इज ए वेरी बेसिक मॉडल. So client exactly initiate a request to the server and the server reply with that for that particular request to the client, clear. So exactly ये MIME format को use करता है. What is MIME? Anyone explain? What is MIME? कोई बताएगा MIME क्या होता है? That is multi-purpose internet mail extensions, clear. ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड होता है जो कि that extends the format of the email message, clear. ये exactly क्या सपोर्ट करता है? जो भी टेक्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर के अंदर जो भी टेक्स्ट होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है, क्लियर, अदर देन ASCII कैरेक्टर्स, क्लियर. इसमें आप कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी अटैच होके आपका ट्रांसमिट होता है, ठीक है,
जो भी अटैचमेंट्स हैं आपके ऑडियो वीडियो इमेजेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और भी कुछ भी हैं, वो सब जो भी अटैचमेंट है वो सब आप इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज माइम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट यहाँ नहीं शो किया गया है, लेकिन उसी के थ्रू ये कम्युनिकेशन आपका डन होता है। सो द क्लाइंट इनिशियलाइजेस द ट्रांजेक्शन बाय सेंडिंग ए रिक्वेस्ट मैसेज एंड द सर्वर रिप्लाइज इट बाय द सेंडिंग ए रिस्पॉन्स। सो एग्जैक्टली एचटीटीपी दो तरह से मैसेजेस को कम्युनिकेट करता है। पहला होता है रिक्वेस्ट मैसेज, दूसरा होता है रिस्पॉन्स मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज क्या है? इट शोज द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज। आप डायग्राम देख सकते हैं। रिक्वेस्ट मैसेज में ये तीन चीजें आती हैं मेनली। पहला होता है रिक्वेस्ट लाइन, सेकंड होता है हेडर और थर्ड होता है बॉडी टेक्स्ट। जो रिक्वेस्ट लाइन है वो फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट में, आप देख सकते हैं राइट साइड में। ये आपका क्या कंसिस्ट करता है? रिक्वेस्ट टाइप, यूआरएल और एचटीटीपी वर्जन। ये सब रिक्वेस्ट लाइन के पार्ट्स हैं। क्लियर? Now, if you talk about individually request line, the request line is used for defining the request type, resource, that is URL and HTTP version. URL की बात हम करें, अभी हमने URL डिस्कस ही कर लिया था। ठीक है, HTTP basically uses the URL to facilitate the access of any document, clear, distributed over the world. So this is how the URL is, URL में आप देख सकते हैं मेथड होता है, फिर होस्ट होता है, देन पोर्ट होता है, देन स्लैश करके पाथ होता है। क्लियर? Port or path is almost same. So if you see, method consist of FTP और HTTP protocol. जैसा कि हम लोग टाइप करते हैं जब भी URL लिखते हैं HTTP लिखते हैं। HTTP is what the part of method, और colons डबल स्लैश host आएगा, host name, then colon, then port name, पोर्ट में जहां से कम्युनिकेशन होना है, ऑब्लिक पाथ, पाथ जहां से वो कनेक्ट होगा, जिस पाथ के थ्रू वो कम्युनिकेशन होगा। So method exactly consists of the protocols such as FTP or HTTP. Host में आपका it is a computer where the required information is located. Host जहां से आप access कर रहे हैं, that is containing the host. Port आपका हो गया URL can optionally contain the server port number. If the port is included, then it should be inserted between host and path. It should be separated by colon also. Now, if you talk about the path, clear? So if you talk about the path exactly, path is the file name of the file where the information is located. Now the time is going to 10 minutes. Now version की बात करें तो the latest version of HTTP is 1.1. Clear? So और response message का format देख